دوستوں، آج 9 رمضان المبارک بدھ کے دن رب کریم کا یہ نام 5 انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی آپ تو کیا آپ کے گھر کے بچے بچے کے ستارہ چمک اٹھے گا۔ مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 9 رمضان المبارک بدھ کے دن رب کریم کا یہ نام ہاتھ کی 5 انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر غیب سے فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جائیں گے۔ اللہ والوں، غیبی مدد جب کسی کے ساتھ آتی ہے، جب رب کسی سے راضی ہوتا ہے، تو پھر غیبی فرشتے، اللہ کا کوئی نیک بندہ، اللہ کا کوئی ولی آ کر اپنے ساتھ رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتا ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جو اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں رب کریم کا یہ نام بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ تو بندہ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کرتا ہے، 70 نیکیوں سے نوازا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو رب کی ذات 70 لاکھ سے نواز دیتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی گنہگار، لاچار، مجبور، بے بس بندہ اپنے آنکھوں میں آنسو لے کر رب کریم سے اپنی حاجت کے لیے مانگتا ہے تو رب فرماتا ہے، مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ اس بندے کی حاجات کو پورا نہ کروں۔ اگر کوئی آپ کی حاجات ایسی ہے جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، تو آج 9 رمضان المبارک بدھ کے دن رب کریم کا یہ ایک نام پڑھتے ہی آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گا۔ اللہ والوں، رمضان المبارک کے مہینے میں جب کوئی بندہ بھکاری بن کر، فقیر بن کر رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنا شروع کرتا ہے، رب کی ذات فرشتوں کو حکم دیتی ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اور آج یہ وظیفہ جو آپ کے مقدر کے ستاروں کو چمکا دے گا، آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے گا، آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، زندگی اور آخرت میں کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ 9 رمضان المبارک بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اللہ والوں، آج کا وظیفہ میرا ان دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آپ کے مقدروں کو تبدیل کر دے گا۔ اللہ پاک کی ذات سے کوئی رو کر تو دیکھے، کوئی تڑپ کر تو دیکھے، کوئی لو لگا کر تو دیکھے۔ ہم نے اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا، ہم نے اپنی عقل اور ذہانت پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک وہ وقت تھا جب مسلمان اللہ پاک پہ توکل کر کر گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیتا تھا اور اللہ پاک اس کے گھوڑوں کو صحیح سلامت دوسری پار پہنچا دیا کرتا تھا۔ جنگ کے موقع پہ اللہ پاک ایسی مدد فرماتے تھے کہ قرآن پاک میں آیا کہ جو جنگ بدر میں تم لڑ رہے تھے، کیا تمہیں گمان تھا کہ تم لڑ رہے تھے؟ حالانکہ لڑ تو ہم رہے تھے۔ اللہ والوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بات کومنٹ سیکشن میں کہتے ہیں، ہماری کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم پریشان ہو چکے ہیں، آپ دعا کر دیں۔ بات یہ ہے، بعض اوقات رب کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے، رب کی طرف سے ناراضگی آ جاتی ہے، رب ناراض ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ پریشانی میں ہوتا ہے، جب کوئی بندہ تنگ دست ہوتا ہے تو وہ رب کی طرف رجوع نہیں کرتا، وہ رب سے لو نہیں لگاتا، وہ اللہ پاک کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، وہ اپنے دوستوں کو فون کرتا ہے، وہ اپنے بھائی کو فون کرتا ہے، وہ جعلی پیروں فقیروں کے چکر میں لگ جاتا ہے، جعلی عاملین کے چکر میں لگ جاتا ہے، اور پھر اللہ پاک کی ذات اس سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتی ہے، تو جس کو فون کر رہا ہے، تو جس سے مدد طلب کر رہا ہے، وہ خود میرا محتاج ہے۔ تو پہلے میری بارگاہ میں آتا، پہلے مجھ سے مانگتا، پہلے مجھ سے سوال کرتا کہ میرے اوپر یہ پریشانی ہے، میرے مولا میری مدد فرما، پھر میں تیرے دماغ میں تیرے دل میں وہ بات ڈال دوں گا کہ فلاں میرے بندے کے پاس جا، وہ تیری مدد کر دے گا۔
हम लोग अपने दोस्तों के पास मदद के लिए जाते हैं, हम उससे मदद लेते हैं, और फिर होता क्या है, वो दोस्त पूरी फैक्ट्री में वो गा देता है कि मेरे ने उसकी मदद करी थी, उसको पैसों की जरूरत थी, मैंने उसकी मदद कर दी। वो जलील करता है आपको। तो अल्लाह वालों, अल्लाह से लो लगाओ, रब से लो लगाओ। आज हम लोगों ने लापरवाही में रजब का पूरा महीना गुजार दिया, रजब का महीना लापरवाही में गुजार दिया। रजब के महीने में शब मेराज की रात आती है, उस रात को भी हमने ये सोचकर गुजार दिया कि अभी थोड़ी देर बाद अमल कर लेता हूँ, थोड़ी देर बाद रब को राजी कर लेता हूँ, थोड़ी देर बाद तस्बीहात पढ़ लेता हूँ। लेकिन वो रात भी गुजर गई। फिर अल्लाह पाक ने हमें शवानुल मुअज़्ज़म का महीना अता करा, कमली वाले आका का महीना अता करा। उस महीने को भी हमने लापरवाही में गुजार दिया, उस महीने की भी हमने कदर कीमत नहीं जानी। हमने शब बारात की रात, जिस रात में तकदीर और नसीब के फैसले होते हैं, जिंदगी और मौत के फैसले होते हैं, उस रात को भी हमने ऐसे ही गुजार दिया। अल्लाह वालों, अब अल्लाह पाक ने रमजान करीम का महीना हमें नेमत बना के दिया है, हमारी तमाम परेशानियों का हल दिया है। आज देखें, देखते ही देखते रहमत का अशरा भी अब हमसे रुखसत होने वाला है। 9 रमजानुल मुबारक आ गई है, एक दिन रह गया है, ये रहमत का अशरा भी गुजर जाएगा। अल्लाह वालों, अभी नहीं करवाओगे अपनी मगफिरत, फिर कब करवाओगे? क्या जब करवाओगे जब तुम्हारे दोनों अंगूठे बांध लिए जाएंगे, जब अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारे ऊपर तौबा को हराम करार दे देगा, उस वक्त करोगे? अल्लाह वालों, अभी वक्त है, अभी मौका है, अभी आप लोगों के पास अल्लाह पाक ने वो मौका दिया है। वो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, आपकी हर हाजत कबूल करेगा, आपकी हर बात मानेगा। बस आप लोग उससे सुलह कर लें, सजदा रेज हो जाएं। आज सजदे की हालत में इस अमल को कर लें। अकाबिरीन फरमाते हैं कि जो बंदा सजदा करता है वो रब के सबसे करीब तरीन हो जाता है। और अगर आप लोग भी रब के करीब तरीन होना चाहते हैं तो फिर आप लोग इस अमल को, इस वजीफे को मेरे बताए गए तरीके से बिलखुसूस कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह बताऊंगा मैं, करेंगे आप, देगा मेरा रब, क्योंकि ये महीना ही देने वाला है, ये महीना ही बांटने वाला है। इस महीने के अंदर नेकियों का भाव भी बढ़ जाता है। आप लोग एक अमल करेंगे 70 गुना ज्यादा मिलेगा। अल्लाह वालों, जो नफिल पढ़ेगा उसको सुन्नतों का सवाब मिलेगा, जो सुन्नत पढ़ेगा उसको फर्जों का सवाब मिलेगा, जो फर्ज पढ़ेगा उसको 70 फर्जों से ज्यादा सवाब अता किया जाएगा। अल्लाह वालों, रोजे रखने की जजा अल्लाह पाक ने फरमाई कि रोजे की जजा मैं हूं, मैं अपने बंदे को दूंगा इसकी जजा। यानी कि अल्लाह पाक ने इसके इनामात के बारे में बताया ही नहीं। तो आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आप लोगों ने करना कब है? आप लोग चाहो तो सहरी के वक्त कर लो या अफ्तारी के वक्त कर लो। ये 2 वक्त मुजर्रब हैं। अव्वल तो रमजानुल मुबारक का एक एक लम्हा, एक एक घड़ी कबूलियत की होती है, लेकिन मैं आप लोगों को अफजल तरीन वक्त बता रहा हूं कि अगर आप लोग इन औकात में वजीफा करोगे, इन औकात में अमल करोगे, तो अल्लाह पाक की जात इतना नवाजेगी, इतना नवाजेगी कि आप लोग खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। क्योंकि जब रब की जात नवाजने पर आती है, जब रब की जात देने पर आती है, तो मेरा अल्लाह गैब के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह पाक अपने हिजाबात हटा देता है और अल्लाह पाक की जात आपको नवाजना शुरू कर देती है। बस हम लोगों का अकीदा मजबूत होना चाहिए। हमने आज का अमल, आज का वजीफा पूरे ध्यान से, यकसुई के साथ करना है और हमारे जहनों में कोई वसवसे ना आए। जहनों में वसवसे रखकर अगर अमल करोगे, अगर वज़ाइफ करोगे, तो पछताओगे तो ना। क्योंकि जब आप लोग वसवसे लेकर आते हैं, जब आपके अंदर ये बात आ जाती है कि पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं मैं करके देखता हूं, मेरे साथ ये मामला हल होगा नहीं होगा, अल्लाह वालों, वसवसों से थोड़ी कुछ मिलता है। आपकी ईमान की पुख्तगी तो ये होना चाहिए कि अभी पढ़ूंगा, रब की जात नवाज देगी, आसानियां होना शुरू हो जाएंगी, हवाओं का रुख बदल जाएगा। हमें यूं महसूस करना चाहिए। रमजान का महीना है, 9 तारीख है, बुध का दिन है। ये वजीफा 5 उंगलियों पर बताए गए तरीके से पढ़ने वाला रब्बे करीम से जो भी मांगता है, जितना भी मांगता है, रब की जात गैब से अता फरमा देती है। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। आज 9 रमजानुल मुबारक है, बुध का दिन है
फौरी तौर पर बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले आप लोगों ने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप लोग कोई सा भी पढ़ सकते हैं। उससे पहले आप लोग आज की 9 रमज़ानुल मुबारक बुध के दिन की खुसूसी दुआ करता हूं। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूंगा, आपने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं किसी की आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। ए मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का सदका आज हम सब पर नजर करम फरमा। आज बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, बे औलादों को नरीना औलाद से माला माल फरमा। आज जो तंग दस्त है, भिखारी है, फकीर है, मेरे मौला तेरी एक कुन का मोहताज है, कुन फरमा दे, हमारी तमाम परेशानियों को ख़त्म फरमा दे, हमारी ज़िंदगी बदल दे। मेरे मौला 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ जिस तरह अभी रमज़ानुल मुबारक के महीने में पढ़ रहे हैं, इसी तरह सारा साल 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तू तौफीक अता फरमा दे। मेरे मौला ज़्यादा से ज़्यादा सदका करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हम सबको अपनी रहमत के साए में रख। मेरे मौला हमेशा सिराते मुस्तकीम पर चला, हमेशा सल्फ सालेहीन की जमात में शामिल फरमा। मेरे मौला जो मांग पाए मुकद्दर फरमा, ना मांग पाए हक में बेहतर और अता फरमा। मेरे मौला फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। उनको उरूज और तरक्की और उनको गलबा नसीब फरमा, उनको फतह और नुसरत से हमकिनार फरमा दे। मेरे मौला सिर्फ तेरी एक कुन की मार है, सारे कुफ्फार को इंशाअल्लाह हम लोग आत दे देंगे। मेरे मौला तेरे एक कुन की मोहताज है। आमीन आमीन आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा, आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। अब फौरी तौर पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें। पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत सी बहनें, बेटियां, माएँ, बुजुर्ग वीडियो को स्किप और काट काट कर देख रही हों, लेकिन अब वजीफे का तरीका बता रहा हूं। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। वजीफा सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट का है, लेकिन आपकी गलती कोताही से वीडियो स्किप करके देखने से अगर कोई अहम बात, कोई खास हिस्सा छूट गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। इसलिए आज लापरवाही मत कीजिएगा, आज कोताही मत कीजिएगा, वरना पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। अब आपने फौरी तौर पर एक बार दुरूद पाक पढ़कर वजीफे का आगाज कर देना है। जब दुरूद पाक आप लोग पढ़ लें, उसके साथ फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें, मनपसंद नौकरी, शादी, कर्ज से निजात, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए आज अपने मकसद की नियत लाजमी करके बैठना, क्योंकि आज आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे आपको मिलकर रहेगा। बुजुर्गों के बताए हुए तरीके से 9 रमजानुल मुबारक बुध के दिन रब्बे करीम का सिर्फ एक नाम पढ़ना है। मेरे बताने में, समझाने में वक्त लगेगा, लेकिन आपके पढ़ने में 1 या 2 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप अपने तमाम मकसद को अपने जहन में रख के या फिर एक लिस्ट बनाकर बैठ जाएं, क्योंकि आज ये नाम पढ़ते दौरान आप रब्बे करीम से जो मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, जितना मांगेंगे, आपको मिलता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा। अपने मकसद की नियत करने के बाद आपने फौरी तौर पर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज कर देना है। फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और यूं महसूस कीजिएगा कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म, आप रब की बारगाह में मौजूद हैं। आप आंखों को बंद किएगा। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो कुरानी आयत का वजीफा है। ये आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की आयत है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये एक ऐसी कुरानी आयत है कि जब कोई बंदा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना शुरू करता है, इस बात का इकरार करता है कि रब्बे काबा तू बेहतरीन कारसाज है, मेरे लिए मेरा रब ही काफी है। जब इन बातों का इकरार करता है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते साथ ही ये रमजान के 90 रोजे का खास अमल है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते साथ ही आपके गिर्द एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाएगा जो आपकी हर हाजत को पूरा कर देता है।
इसलिए कह रहा हूं कि रमजान के 90 रोजे बुध के दिन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते दौरान आपने तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद को जहन में रखकर ये वजीफा पढ़ना है और इंशाअल्लाह सिर्फ 7 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने से 7 आसमानों जमीनों का रिज्क दौलत आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। सिर्फ 7 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने से मुकद्दर का सितारा ऐसा चमकेगा कि हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाओगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आप जिस चीज में हाथ डालोगे वो सोना हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज 9 रमजानुल मुबारक के दिन रब्बे करीम का ये एक नाम हाथ की 5 उंगलियों पर बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। शर्त यह है कि बुजुर्गों का बताया हुआ तरीका है, में किसी भी किस्म की गलती कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है। एक एक नुक्ता एक एक बात समझा रहा हूं सिर्फ इसलिए कि आपसे किसी भी तरह की कोई गलती ना हो सके। आपने पहले नंबर पे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 7 बार पढ़ना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी और जो बंदा तवज्जो से पढ़ेगा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते दौरान अगर आपकी आंखें नम हो जाए, आपका जिस्म लरस जाए और आपको यूं महसूस हो कि आपके करीब से कोई गुजर गया है तो समझ लीजिएगा कबूलियत हो चुकी है। समझ लीजिएगा कि आपके बिगड़े काम संवर गए हैं। समझ लीजिएगा कि आपके मुकद्दर का सितारा चमक उठा है। समझ लीजिएगा कि आपकी एक नई जिंदगी का आगाज हो गया है जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा, ना दर बदर की ठोकरें खाने पड़ेंगी। जितना मांगेंगे जैसा मांगेंगे रब की जात झोलियां भर भर कर नवाजेगी। अब 7 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है जिस नाम की रब्बे करीम ने कसम खाई है। रब्बे करीम ने कसम खाई इस नाम की कि इस नाम को पढ़ने वाला मुझसे जो भी मांगेगा फरिश्ते उसकी हर हाजत को पूरा फरमाएंगे। अब 9 रमजान बुध के दिन जिस बंदे को इस नाम को पढ़ने की तौफीक मिल जाए तो खुद सोचें कि रब की जात फिर किस तरह से नवाजेगी, रब फिर किस तरह से रंग लगाएगा, क्योंकि देने वाली जात रब की है, कसम खाने वाली जात भी रब है जो सच्चा है। तो आप लोगों ने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो या फत्ताहू का वजीफा है। या फत्ताहू रब्बे करीम का वो नाम है जिस नाम की रब्बे करीम ने कसम खाई है। जब कोई बंदा 9 रमजानुल मुबारक बुध के दिन रब्बे करीम का ये एक नाम या फत्ताहू पढ़ता है तो जो वो मांगता है मिल जाता है। नया घर मांगता है घर मिल जाएगा, कर्ज से निजात के लिए, मनपसंद नौकरी के लिए, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, हर मुश्किल परेशानी से निजात के लिए आप ये वजीफा आप ये अमल कर सकते हैं। अब आपने या फत्ताहू को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको मैं ये बता दूं कि आप लोगों ने इस अमल को पूरे ध्यान से पढ़ना है। हाथों की 5 उंगलियों पर पढ़ना है। हर उंगली पर 3 निशान होते हैं। दूसरी उंगली पर 3 निशान हैं, तीसरी उंगली पर 3 निशान हैं। कुल मिला के 15 बार आपने या फत्ताहू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया आपने बिल्कुल उस तरह से ही करना है। अपनी तरफ से रद्दो बदल मत करिएगा। जो आपको तरीकेकार बताए हैं, क्योंकि बुजुर्गों के बताए हुए अमाल होते हैं तो इनके अंदर हिकमतें होती हैं। तो अल्लाह वालों, इन हिकमतों को हमारी अकल तो नहीं समझ सकती, तो लिहाजा जो तरीकेकार मैं आपको बताऊं आपने उसके मुताबिक ही पढ़ना है। आप गौर करेंगे हर उंगली पे 3 निशान हैं, तो हर उंगली पे आपने 3 बार उन निशानों पर उंगली रखकर एक एक बार पढ़ना है। या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू। इस तरह से आप लोगों ने या फत्ताहू को पढ़ना है। सिर्फ 15 बार पढ़ना है। आज का ये खासम खास अमल है। अगर अल्लाह पाक की जात से
1,00,000 मांगोगे तो इंशाअल्लाह 70 लाख से मेरा रब नवाजेगा। जब 9 रमजान मुबारक बुध के दिन का खासम खास अमल पढ़ा जाता है, 7 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद जब 15 बार या फत्ताहू को पढ़ा जाता है, और या फत्ताहू वो नाम है जिसकी रब ने कसम खाई है। रमजान के महीने में पढ़ते ही 15 बार पढ़ना है। 15 की 15 हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। जब जो बंदा खुली आंखों से गैबी मदद देखना चाहता है, खुली आंखों से रब के कमालात को, मोजज़ात को देखना चाहता है, सिर्फ एक रात का यकीन करें ये अमल है। दिन रात जब आपको टाइम मिले इस अमल, इस वजीफे को पढ़ने की मुकम्मल इजाजत आम है। बस आप लोगों ने तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ना है, क्योंकि जब आप लोग इस अमल को कर रहे हो तो ना कोई आपसे बात करे, ना आपके पास मोबाइल मौजूद हो कि उसकी टून बज जाए, मैसेज आ जाए तो आप लोग मोबाइल की तरफ ध्यान हो जाए। ध्यान अपने रब की तरफ करना है। महसूस करें कि आप रब को देख रहे हैं, और अगर ये तसव्वुर ना बना पाए तो कम से कम ये तसव्वुर तो बना लीजिएगा कि अल्लाह पाक आपको देख रहा है। अल्लाह वालों, जब आप लोग या फत्ताहू को हाथ की उंगलियों पर 15 बार पढ़ लें, जिस तरीके से बताया उस तरतीब के साथ पढ़ लें, फिर आप लोगों ने तीसरे नंबर पे सूरतुल कौसर को पढ़ना है, जिसे दौलत का वजीफा कहा जाता है। सूरतुल कौसर जैसी कामयाबी सूरत ये शायद ही किसी की किस्मत में आई हो। अल्लाह वालों, ये वो सूरत है जिसे दौलत की सूरत कहा जाता है, जिसे दौलत का अमल कहा जाता है। जो बंदा इस बात को पसंद करता है कि अल्लाह पाक उसकी हर तरह की हाजत को कबूल कर ले, उसके तमाम पैसों के मामलात को हल फरमा दे, उसकी दुश्मनों की चीखें निकल जाएं, तो फिर वो इसको पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। आप लोगों ने इस सूरह मुबारका को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 3 बार। बहुत छोटा सा अमल है, सिर्फ 3 बार पढ़ना है। जब 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरतुल कौसर को पढ़ लिया जाए, उसके बाद फौरी तौर पे अल्लाह पाक का ये जलाली इस्म आजम, जिसको पढ़ने वाला, जिसको अपने मुंह से कहने वाला अल्लाह पाक को राजी कर लेता है। ये अमल, ये वजीफा रब को राजी करने वाला है। आपने या जल जलाली वल इकराम को पढ़ना है। या जल जलाली वल इकराम ये वो इसमें आजम है कि जब बंदा पढ़ता है या जल जलाली वल इकराम, अल्लाह पाक की जो जात है वो जलाल में आ जाती है। अल्लाह पाक की रहमतें आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसने लग जाती हैं। अल्लाह वालों, या जल जलाली वल इकराम आप लोगों ने और रमजान मुबारक को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। जब 21 बार आप लोग या जल जलाली वल इकराम को पढ़ लें, उसके बाद फिर दोबारा दुरूद पाक पढ़ लें, वजीफा मुकम्मल हो गया। अमल मुकम्मल होने के बाद हाथ उठा के अल्लाह पाक के हुजूर अपनी तमाम हाजात को मांगना शुरू करें। इंशाअल्लाह जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, मेरे रब की जात जरूर अता करेगी। इस वजीफे को करते वक्त एक चीज को ध्यान में रखिएगा, जो आपकी हाजत है, जो आपका मकसद है, वो आपके जहन में हो, आपके तसव्वुर में हो कि आप लोग इस मकसद को, इसके लिए वजीफा पढ़ रहे हैं। जब आप लोगों का मकसद आपके जहन में होगा, अल्लाह पाक उस मकसद में आसानियां फरमाता जाएगा, उस मकसद में आपके लिए कामयाबियां होती जाएंगी। अल्लाह पाक बेशुमार की आपके लिए आसानियां करता रहेगा, क्योंकि जब अल्लाह पाक की जात आसानियां फरमाती है तो फिर कौन है जो अल्लाह पाक के बिगड़े हुए काम को बिगाड़ दे? किसी में इतनी ताकत नहीं। रब को राजी कर लो, जब को राजी करने से बेहतर है। दुनिया को राजी करने जाओगे खुद परेशान हो जाओगे, रब को राजी करोगे दुनिया परेशान हो जाएगी कि ये कितना कोई मोअज़्ज़िज़ बंदा है कि जिस चीज में हाथ डालता है वो काम बन जाता है, जिस चीज में हाथ रखता है वो सोना बन जाती है। और यकीन करें अल्लाह पाक आपको इतनी इज्जतों से नवाजेगा कि पूरे खानदान में आपके नाम की मिसालें दी जाएंगी। अल्लाह वालों, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, वजीफा जो बताया वो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सारे अच्छे नाम मेरे रब के लिए हैं, सारी अच्छी सिफात मेरे रब के लिए है, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। उस रब के करीम के कोई 2 नाम कमेंट सेक्शन में बिलखुसूस लिखिएगा, हुसूल बरकत और सवाब की नियत से। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो, एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।